Hi, lovely students. Welcome back to Fadafad English with Abhishek sir. Hope you are all good. आप सब अच्छे हैं. Alright, this is a Facebook live English speaking class where students practice in the comment section. जहाँ पर students comments में practice करते हैं. I could not conduct a live class yesterday because I had another piece of work. एक दूसरा काम आ गया था. Alright, and hope you are all good. आप सब अच्छे हैं and you're doing pretty well. Right, sorry for being absent yesterday. Well, I have a YouTube channel in the same name, Fatapat English with Abhishek sir, and you can follow me there and learn this art of spoken English. Well, in this live class, we basically discuss some English speaking structures and some important daily use vocabulary and some conversation. And basically this English speaking class is quite interesting when the students join us. If you think that you are serious about learning to speak English, यदि आप भी English को लेकर serious हैं, you can of course join me live every day at 6:30. This class starts at 6:30 and it goes on up to 7 o'clock. ये 7 बजे तक चलती है, half an hour. It's a free English speaking class, and for short videos you can follow me on Instagram. Right. A very good evening to all the wonderful people who are attending this class live. All right. A very good evening, everyone. How are you doing today? All right. Good evening, gentlemen. Ravi Sharma, where had you been for such a long time? Where had you been? Had you been to London? Where had you been? Right. Good evening, ma'am. A very wonderful evening. Right. So, well, I would like to ask you, how many people are joining me now? I can see only one, but there are more people. I'm good. I'm in the best of my health or best of my spirits. कैसे भी आप कह सकते हैं. You just simply have to ask the well-beings. आपको well-beings पूछने हैं, हालचाल पूछने हैं. It is a customary. It is a customary. मतलब ये एक रिवाज है, ये एक रीति है, ये एक सिस्टम है. इट इज़ ए कस्टमरी. जैसे घर में मेहमान आ जाते हैं, तो घर में मेहमान आते हैं तो वो बच्चों को पैसे दे करके जाते ही हैं. इट इज़ ए कस्टमरी. कस्टम से बना है. आई एम इन ए वेरी गुड शेप. ओके, गुड. व्हाट अबाउट यू? आई एम प्रीटी वेल. आई एम प्रीटी फाइन, प्रीटी कूल, प्रीटी गुड. कैसे भी आप जवाब दे सकते हैं. राइट, 7 people are joining. Thank you. Thank you very much for telling us. Right, so it is a customary. एक नया sentence सीखिए. I had been busy with some work. Okay. What kind of work? Was it a personal work or it was a professional work? Am I loud and clear, guys? Hit the like button and share this video so that more and more people get notification of this video and they join us live. It is a customary, right? आपने बिल्कुल ठीक टाइप किया. It is a customary. ये एक रिवाज है. जैसे घर में कोई भी मेहमान आता है तो वो जाते वक्त पैसे देता है. It is a customary, right? घर में नई बहू आती है, वो खाना बनाती है और उसे पैसे दिए जाते हैं. It is a customary, right? Okay, thank you very much for telling me that my voice is clear. Good evening, Ayushi. Stay tuned and keep learning. It is a customary. टाइप कीजिए. It is a customary. ये एक रिवाज है, एक रीति है, एक कस्टम सा बन गया है. कोई भी चीज़ जब आपको लगता है कि एक कस्टम सा बन गया है, एक रिवाज सा बन गया है, जैसे किसी होटल में जाओ तो आप खाना वाना खाते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे वेटर को आप टिप देते ही हैं. इट इज़ ए कस्टमरी. एक कस्टम है जो बना दिया गया है, एक रिवाज है जो बना दिया गया है. इट इज़ ए कस्टमरी, राइट? जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में यदि आप हिंदी बोलते हो तो आपको फाइन पे करना पड़ता है. इट इज़ ए कस्टमरी. सही से इट इज़ ए कस्टमरी. ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. इट इज़ ए कस्टमरी. ये कस्टमरी है, राइट? तो जैसे कस्टमरी है, टिप इज़ ए कस्टमरी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. यू आर बीइंग क्रिएटिव, राइट? आप आजकल क्रिएटिव हो रही हो, मैम. Good. But there is no fine here. Right? Here we have a fine. In the Spoken English Institute, we charge 10 rupees to from the people who speak Hindi.
जो लोग हिंदी बोलते हैं उनसे हम फाइन चार्ज करते हैं। इट इज़ ए कस्टमरी, इट इज़ ए कस्टमरी, राइट। ठीक ऐसे ही मतलब जब कभी भी कोई ऐसा है कि जो लिखा हुआ कहीं नहीं है, जो लिखा हुआ नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को देखकर आप उसे फॉलो करने लगते हैं, इट इज़ ए कस्टमरी। आई हैव पेड मैनी टाइम्स, यू हैव नॉट पेड मैनी टाइम्स, यू हैव पेड सम टाइम्स, राइट। तो इट इज़ ए कस्टमरी आपने सीख लिया। कोई भी चीज़ जो एक कस्टम नहीं है, एक रिवाज नहीं है, लेकिन फिर भी उसे रिवाज की तरह से लोग फॉलो करते हैं, इट इज़ ए कस्टमरी। कैन यू गिव मी सम मोर एग्जाम्पल्स? क्या आप मुझे कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? मुझे तो आई कैन नॉट रिकॉल ऑल द एग्जाम्पल्स ऑल एट वंस। मुझे तो यही याद आ रहा है कि नानी के घर जाओ तो वहाँ से पैसे मिलेंगे। हाँ, एक और चीज़ है, जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप मिठाई लेकर जाते हैं, इट इज़ ए कस्टमरी। आप फल लेकर के जाते हैं, इट वॉज पर्सनल वर्क, फॉर दैट आई हैड टू गो आउट ऑफ टाउन एंड देयर वॉज चेंजेस इन माई ऑफिस टाइमिंग्स। ओके, now I'll be joining every day. Wonderful, wonderful to have you here. I like it when you are here. I like it. You are quite a wonderful person. So your voice is very slow, but it is the highest from my side. It is the highest from my side. You turn up the volume of your own phone. आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ाइए, राइट। सो इट इज़ ए कस्टमरी। आपने सीख लिया हो तो मुझे थम अप भेजिए। जैसे आजकल मैं मानता हूँ कि जैसे घर में बहू आती है घर में बहू आती है, उसकी मुंह दिखाई होती है, सबने मुंह देख रखा होता है, सबने वीडियो कॉल पे बात कर रखी होती है, लेकिन फिर भी मुंह दिखाई होती ही है, इट इज़ ए कस्टमरी। इट इज़ ए कस्टमरी मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है जो एक कस्टम सा बना दिया गया है, कस्टम एक रिवाज सा बना दिया गया है, इट इज़ ए कस्टमरी, राइट। इट इज़ ए कस्टमरी। वेल, टचिंग फीट इज़ ए कस्टमरी, राइट। ओके, इट इज़ कस्टमरी, राइट। एक और वर्ड है जो हम अभी सीखेंगे, when we meet a patient then give him fruits, and I think it's a customary, right? मुंह दिखाई is a customary, that's right। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में चलती हैं। अब आपको एक नया वर्ड मिल गया, customary। एक और वर्ड है compulsory, आप जानते हैं पहले से। compulsory तो आप पहले से यूज़ करना जानते हैं। अभी एक नया वर्ड सीखेंगे इसकी जगह, जैसे आपने उसे सुना भी होगा, mandatory। Mandatory, it is mandatory to pay fine, it is mandatory to wear seat belts when you are in a metro city, it is mandatory, it is mandatory to wear a seat belt when you are in a big city, when you are in a big city, while you are traveling, while you are driving a car, it is mandatory to wear a seat belt। ठीक ऐसे ही जब प्लेन टेक ऑफ करता है, प्लेन लैंड करता है, भले ही कुछ ना हो, कुछ नहीं होने वाला, बट इट इज मैंडेटरी टू वियर ए सीट बेल्ट। कंपलसरी आप पहले से जानते हैं, मैंडेटरी सीखिए। मैम आपकी स्पेलिंग गलत हो गई, मैंडेटरी बनाइए। यस, इन्होंने दिनेश कुमार जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है। अरे, it's mandatory to speak English in AIL. Dinesh Kumar, well done, well done। It is mandatory to wear a seat belt when we are in a big city while traveling a car. While we are driving, while we are in the front seats, hit the like button, guys, and share this video so that it reaches out to more and more people and they join us live every day। And now our English speaking group has 2,800 people. This is excellent। Where are you guys? Type fast। Where is Mohini? Mohini has been absent।
Moini has been absent. It is mandatory. It is compulsory. Right. So even when we are talking to someone, it is mandatory to use passive voice sentences. Again, we are going to talk about passive voice. हम फिर से passive voice के बारे में बात करने वाले हैं. You've already learned passive sentences, passive voice sentences. You've already learned, and you've learned them nicely. Right. ठीक ऐसे ही जैसे हम लोग जनरल सेंटेंसेस बोलते हैं, डेली लाइफ में हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस भी बोलते हैं. एंड यू हैव आई थिंक अटेंडेड सम क्लासेस अर्लियर अबाउट पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस की क्लासेस आपने कुछ अटेंड भी कर ली हैं पहले ही. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस पैसिव वॉइस. इट इज़ मैंडेटरी टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स. करेक्ट मनी मैम, एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए लेट्स फोकस ऑन वियरिंग ड्रेस इज मैंडेटरी while attending a school. Wearing a uniform कहना चाहिए, ड्रेस की बजाय यूनिफॉर्म, क्योंकि वो सबको एक जैसा बना देती है ना यूनिफॉर्म. ड्रेस तो आप पार्टीज में भी पहनते हैं, ड्रेस तो आप घर पे भी पहनते हैं. वेयरिंग यूनिफॉर्म, या फिर कहिए वेयरिंग ए स्कूल ड्रेस, बल्कि वो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, पुलिस की यूनिफॉर्म होती है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है. यूनिफॉर्म करने के लिए वो यूनिफॉर्म, लेकिन जनरली लोग कह देते हैं स्कूल ड्रेस. So school dress is not the right word. It's not the right word. Uniform is the right word. School uniform, sorry, office uniform. हम इसे यूनिफॉर्म कहेंगे ड्रेस की बजाय. I hope it's clear. It is mandatory to wear uniform in the school. It is mandatory to verify your document for taking a smartphone by government. Yeah. Have you got it? Vaibhav Sharma, have you got the smartphone? You should have got by now. अब तक मिल जाना चाहिए था. Okay, let's focus on passive voice again. Passive voice पर फिर से focus करते हैं. Let me revise. Let me remind you. मुझे एक बार फिर से. I will get tomorrow. Good. All the best. Show me when you get it. मुझे भी दिखाइएगा कौन सा गवर्नमेंट स्मार्टफोन दे रही है आपको. इट इज़ मैंडेटरी टू वियर यूनिफॉर्म्स इन स्कूल. राइट. चलिए, कुछ घरों में इट इज़ मैंडेटरी टू वियर साड़ीज बाय लेडीज, बाय हाउस वाइफ्स. राइट. अब हम बात कर रहे हैं कि मैंने आपको सिखा दिया था वाटर बॉटल इज मैंडेटरी इन समर्स. ओके, इट इज़ बीइंग डन, इट हैज़ बीन डन. गुड. मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपका मोबाइल ख़राब हो गया है, तो आप किसी शॉप पर जाएंगे, और शॉप पर जब जाएंगे तो आप उसे बताएंगे, भैया मेरा मोबाइल ख़राब हो गया. तो आप कहेंगे माई मोबाइल हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर. आप ये भी कह सकते हैं आई थिंक माई मोबाइल हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर. आई गेस माई मोबाइल हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर. गुड. अब आप इसे टाइप करना शुरू करिए, कमेंट्स में सीखना, रिवाइज करना शुरू करिए. गुड. आई माइट गेट बोथ थिंग्स, टैबलेट एंड स्मार्टफोन. मेरे साथ साथ चलिए. माई मोबाइल हैज गॉन आउट ऑफ ऑर्डर. आई थिंक माई मोबाइल हैज गॉन आउट ऑफ ऑर्डर. आप दोनों तरीके से कह सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपकी जबान पर आसानी से आ जाए. आप इसे एक और तरीके से कह सकते हैं, माई मोबाइल सीम्स टू हैव गॉन आउट ऑफ ऑर्डर. इसे भी सीखिए, ये भी इंग्लिश में बड़ा ही कॉमन स्ट्रक्चर है. माई मोबाइल सीम्स टू हैव गॉन आउट ऑफ ऑर्डर. माई मोबाइल सीम्स टू हैव गॉन आउट ऑफ ऑर्डर. और ये सेंटेंस आप कहीं पर भी लगा सकते हैं. भाई ऐसी है, आपके घर पे चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल खराब हो ही गया है. आप तो एक अंदाजा ही लगाएंगे ना, लगता है खराब हो गया है. The AC seems to have gone out of order. My air conditioner seems to have gone out of order. Type it in the chat box. My mobile phone seems to have gone out of order. ऐसे ही यदि आपकी कार चलते चलते बंद हो जाए, चलते चलते आपकी कार बंद हो जाए, तो आपको क्या लगेगा? आप किसी मैकेनिक को जाकर के क्या बताएंगे? लगता है मेरी कार खराब हो गई है.
My car seems to have gone out of order. My car seems to have gone out of order. Type it fast. Type it in the chat box. My car seems to have broken down. My car seems to have broken down. ये भी ठीक है. My car seems to have gone out of order. ये भी ठीक है. Arun Yadav, you're welcome to this class. My mobile seems to have gone out of order. My air conditioner seems to have gone out of order. My car seems to have broken down. My scooter seems to have broken down. Correct. Correct. My car seems to have broken down. My scooter seems to have, my car's AC belt seems to have gone out of order. Okay. Good. 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 जब कभी भी आपको कहना है कि ये खराब हो गया तो दोनों तरीके से हम कह सकते हैं, gone out of order and break down. break down की लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी ना. My car seems to have broken down. My mobile seems to have broken down. My earbuds seems to have gone out of order. Right. लगता है खराब हो गए हैं. तो अब आप उस मैकेनिक से कहेंगे कि भैया मुझे इसे ठीक करवाना है, मुझे इसे ठीक कराना है, लगता है ये खराब हो गया. द फैन सीम्स टू हैव गॉन आउट ऑफ ऑर्डर. सीम्स टू हैव गॉन कहना पड़ेगा मैम. द फैन सीम्स टू हैव गॉन आउट ऑफ ऑर्डर. माई मोबाइल सीम्स टू हैव हैंग्ड. ऐसे नहीं कह सकते. माई कार सीम्स टू हैव, माई कार सीम्स कहना पड़ेगा. तो फिर आप उस शॉपकीपर से कहेंगे या उस मैकेनिक से कहेंगे, आई वॉन्ट टू गेट इट रिपेयर्ड, आई वॉन्ट टू गेट इट फिक्स्ड, आई वॉन्ट टू गेट माई मोबाइल फिक्स्ड, आई वॉन्ट टू गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड. I want to get my mobile repaired. I want to repair नहीं हो सकता क्योंकि कोई और व्यक्ति करेगा तो हमें, मैंने पहले ही सिखाया था कि हम get का यूज करेंगे. I want to get it fixed. I want to get my car fixed. I want to get my mobile fixed. I want to get my watch fixed. ये सब सेंटेंसेस हैं यार, कुछ भी नहीं है. स्ट्रक्चर आपने एक बार सीख लिया तो फिर आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कोई भी सेंटेंस कह सकते हो आप. My car seems to have broken down. I want to get it fixed. I want to get my mobile repaired कहना पड़ेगा. I want to get it fixed. I want to get it fixed. I want to get it repaired. My car seems to have broken down. My car seems to have broken down. My mobile seems to have broken down. I want to get it fixed. मुझे इसे ठीक कराना है, मुझे इसे ठीक कराना है. तो वो आपसे कह जाएगा, वो आपसे कह देगा उस समय पर वहाँ पर बैठकर कि भी ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा. योर मोबाइल विल बी रिपेयर्ड, योर मोबाइल विल बी फिक्स्ड, योर मोबाइल विल बी रिपेयर्ड, योर मोबाइल विल बी फिक्स्ड. I want to get my Ertiga fixed. I want to get my mobile repaired. Good, 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 good. आपने इसे सीख लिया है, ठीक है, हो जाएगा. It will be fixed. Your mobile will be fixed. आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा. Your mobile will be fixed. Your mobile will be repaired. आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन यदि अमेरिकन इंग्लिश में कहोगे तो वो फिक्स का ही यूज़ करते हैं. Your mobile will be repaired. It will be fixed. Your scooter will be repaired. Correct. कुछ भी हो जाएगा. Your scooter will be serviced. Your scooter will be repaired. Your AC can be repaired. Ravi sir has come today. Sir, I also feel happy. It will be repaired. It will be fixed. ये आपने सीख लिया.
अब आप 2-3 दिन के बाद वहाँ पे, या जो है घंटे 2 घंटे के बाद, डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो। यदि आप फ्रिज दे रहे हो, एसी दे रहे हो, तो उसमें 1 आध दिन का टाइम लग सकता है। लेकिन मोबाइल तो आप छोड़ नहीं सकते, मोबाइल आप शॉपकीपर के पास छोड़ नहीं सकते। घंटे 2 घंटे में ही आपको वापस भी चाहिए। उसने कहा ठीक है, शाम को ले जाना। अब जब आप शाम को उसके पास पहुंचोगे, जब आप इवनिंग में उसके पास पहुंचोगे, तो आप उससे पूछोगे, हाँ भाई, मेरा मोबाइल रिपेयर हो गया, मेरा मोबाइल रिपेयर हो गया। अब आप देखिए, आप उससे नहीं पूछ रहे कि तूने कर दिया या नहीं कर दिया, आपको मतलब ही नहीं है। भैया मेरा मोबाइल रिपेयर हो गया क्या? कम ऑन, टाइप इट फास्ट। मैं चाहता हूं कि आप खुद टाइप करें, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि क्या लिखना है। नॉट गोना टेल यू, यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन। आपको अपने आप लिखना पड़ेगा। टाइप इट फास्ट। यस, माई मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड और नॉट। यस, करेक्ट करेक्ट, आपने सीख लिया। माई मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड और नॉट। हैव यू गॉट माई मोबाइल रिपेयर? नहीं हो सकता, आपने मेरा मोबाइल रिपेयर करवा दिया। ऐसा आप पूछ सकते हो हालांकि, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही पूछेंगे कि भैया मेरा मोबाइल रिपेयर हो गया। माई मोबाइल हैज़ बीन रिपेयर्ड, माई मोबाइल हैज़ बीन रिपेयर्ड और नॉट। मनी मैम, यू आर डूइंग वेरी वेल, दिस वे यू विल लर्न फास्ट। थोड़ा थोड़ा सा सीखोगी लेकिन सीख जाओगी। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप टाइप करती हो, आप क्लास अटेंड करती हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप ट्राई कर रहे हो सीखने की। हैज़ माई मोबाइल बीन रिपेयर्ड, हाँ ये ग्रामेटिकल है, ये ग्रामेटिकल है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम ऐसा नहीं बोलते। हैज़ को बाहर निकाल के नहीं बोलते। हैज़ माई मोबाइल बीन रिपेयर्ड ऐसा नहीं बोलते। आप बोलते हैं माई मोबाइल हैज़ बीन रिपेयर्ड। तो वो आपको कई बार कह देता है हो रहा है, आपका मोबाइल सही हो रहा है। देखते हैं क्या आप इसे कह पाते हैं। टाइप इट। आपका मोबाइल रिपेयर हो रहा है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देखते हैं आप सही बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। आपका मोबाइल सही हो रहा है। Come on guys, type it fast. Yes, the right sentence is your mobile is being repaired. Getting repaired नहीं हो सकता। आपका मोबाइल ठीक हो रहा है। Your mobile is being repaired. Passive voice का sentence है, get नहीं आ सकता। Your mobile is being repaired. मैंने सिखाया था पिछली कुछ क्लासेस में, आप शायद उस समय एब्सेंट रही। दीक्षा वाशने फॉर द फर्स्ट टाइम। हु आर यू दीक्षा? वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? राइट, कम ऑन गाइस, योर मोबाइल इज बीइंग रिपेयर्ड। आपका मोबाइल ठीक हो रहा है। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया था, खाना बन रहा है। आई एम फ्रॉम चंदौसी सर। ओके, आर यू माई स्टूडेंट? आर यू ए स्टूडेंट ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट? आर यू ए स्टूडेंट ऑफ अभिषेक सर? योर कार इज बीइंग पॉलिश्ड, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, गुड, ग्रेट। ये बहुत जल्दी जल्दी सोचता है, बहुत जल्दी जल्दी करता है। एंड माई सिस्टर इज योर एक्स स्टूडेंट, दैट्स वंडरफुल। द क्लास टाइमिंग इज 6:30 to 7 every day live at Facebook, Monday to Friday. Monday to food is being prepared. खाना बन रहा है। अब खाना बन रहा है, ये तो अभी की बात हो गई, लेकिन खाना तो रोज ही बनता है। खाना तो रोज ही बनता है। तो फिर हम कहेंगे
फूड इज प्रिपेयर्ड एवरी डे, ये भी पैसिव वॉइस है। अब इसे नया सीखो एक ये नया स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, इट इज डन। ये मैंने अभी तो यूट्यूब पर नहीं सिखाया है ये उन वीडियोस में शायद ना हो। फूड इज प्रिपेयर्ड एवरी डे, फूड इज प्रिपेयर्ड एवरी डे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। खाना बनता ही है रोज, खाना बनता है। कौन बनाता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमारे घर में खाना बनता है, रोज बनता है। ऐसे ही यदि आपको कहना हो सड़कें साफ होती हैं, तो आप टाइप करेंगे रोड्स आर क्लीन्ड डेली, रोड्स आर क्लीन्ड एवरी डे। जो भी काम आपको लगता है कि होता है, इट इज डन एवरी डे, इट इज डन डेली, इट इज डन every month, it is done. Okay, this structure is also in video. Wonderful, huh? You remember everything. Lassi is prepared by me. ना हम नहीं खेल रहे, ये अपनी चलाने लग गया। जो मैं सिखा रहा हूँ उसे सीखो, तभी वो क्लियर होगा, अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक्स। ये बाय मी तो आता ही नहीं, बाय मी हम बाद में करेंगे इसको, अभी जब हम और एडवांस लेसन्स की तरफ चलेंगे। अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको नए हैं ये, इनको सीख लेने दो। रोड्स आर क्लीन्ड, सड़कें साफ होती हैं। ऐसे ही बच्चे पिटते हैं, बच्चे पिटते हैं। उन्हें कौन पीटता है? माँ पीटती है, टीचर पीटता है, पापा पीटते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे पिटते हैं। चिल्ड्रन आर बीटन, चिल्ड्रन आर बीटन। रोड्स आर क्लीन डेली, चिल्ड्रन आर बीटन। बताओ बच्चे पिटते हैं कि नहीं पिटते? स्टूडेंट्स आर बीटन, राइट। स्टूडेंट्स आर बीटन, चिल्ड्रन आर बीटन, चिल्ड्रन आर बीटन, द किड्स आर बीटन। बच्चे पिटते हैं। हाउस इज मॉप्ड एवरी डे, हाँ, घर में पोछा लगाया जाता है हर रोज। ऐसे ही ब्रेकफास्ट बनाया जाता है, ब्रेकफास्ट बनता है रोज। ब्रेकफास्ट इज प्रिपेयर्ड एवरी डे। अरे वाह, फेसबुक लाइव क्लासेस कंडक्टेड मंडे टू फ्राइडे। अतुल सर को नमस्कार। सर को तो नमस्कार करना ही पड़ेगा, ये तो हमारे भी सर हैं, ये तो बड़े वाले सर हैं, राइट। लाइव क्लासेस कंडक्टेड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। फ्लोर इज मॉप्ड एवरी डे। बिल्कुल सही, राइट। ब्रेकफास्ट इज प्रिपेयर्ड एवरी डे। मैडम आपका ये रह गया, इज रह गया इसमें। ब्रेकफास्ट इज प्रिपेयर्ड। लाइव क्लास इज कंडक्टेड एवरी डे विदाउट फेल। ओके, गुड गुड। ऐसे ही कपड़े धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, हमारे घर में कपड़े रोज धुलते हैं। ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। जब इन्हें प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पैसिव वॉइस बोलती है डेली लाइफ में। जैसे खाना बनता है, खाना बनता है, फूड इज प्रिपेयर्ड एवरी डे 3 times, 3 बार तो खाना बनता ही है। कपड़े धुलते हैं, क्लोथ्स आर वॉश्ड डेली, क्लोथ्स आर वॉश्ड डेली, और ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ते में 2 बार। इन सम हाउसेस clothes are washed every day. In some houses the clothes are washed twice a week, or even the days are fixed. जो दिन फिक्स हैं उनके कि भाई जो है मंडे में धुलेंगे, उसके बाद buffering. No, it's not buffering here. Maybe your internet connection is slow. Right. वर्शिप इज एवरी डे। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। वर्शिप इज डन एवरी डे। पूजा की जाती है रोज, ऐसे बोलेंगे। खिचड़ी इज प्रिपेयर्ड ट्वाइस इन अ वीक। गुड गुड। कोई भी काम जो होता है, अब आप देखो एटीएम यूज किए जाते हैं कि नहीं? 2 सब्जीज आर प्रिपेयर्ड
आर कहना पड़ेगा मैम। 2 सब्जीज आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी मील। फ्लोर इज मॉप्ड। वर्शिप इज डन एवरी डे। वर्शिप इज डन। करेक्ट करेक्ट। पूजा की जाती है। हाउस वाइफ्स आर स्कोल्डेड। महिलाओं को डांटा जाता है, जो गृहिणियां होती हैं उनको डांटा जाता है। हाउस वाइफ्स आर स्कोल्डेड, दे आर नॉट बीटन। हाउस वाइफ्स को पीटा नहीं जाता, उन्हें सिर्फ डांटा जाता है। हाउस वाइफ्स आर स्कोल्डेड। फास्ट फूड इज ईटन समटाइम्स इन माई फैमिली। ओके, गुड गुड। Students are not beaten in American Institute. Housewives are scolded. Vegetables are bought every day. अरे वाह मैम, हाउसवाइफ इज स्कोल्डेड। एक की बात क्यों करें? मुझे तो लगता है काफ़ी सारी महिलाओं को डांटा जाता है। हाउसवाइफ्स आर मैनी एडमिशंस आर टेकन एवरी डे। राइट, मैनी एडमिशंस आर टेकन एवरी डे। दिस लाइव क्लास इज अटेंडेड। लाइव क्लास अटेंड की जाती है। तो कोई भी काम एक स्ट्रक्चर में आपको सिखा रहा हूं, धीरे धीरे ये परमानेंट हो जाएगा। हाउस वाइफ्स आर स्कोल्डेड वेरी ऑफन। ओके, हस्बैंड्स आर नॉट स्कोल्डेड। हस्बैंड्स को डांटा नहीं जाता। मुझे, इवन आई एम स्कोल्डेड, मुझे डांटा जाता है, मेरे जैसे आदमी को। इतना सिंसियर, इतना हार्ड वर्किंग, इतना लविंग, इतना प्यारा, आई एम स्कोल्डेड, मुझे डांटा जाता है। आर यू स्कोल्डेड? आपको भी डांटा जाता है? क्या लगता है? आर यू स्कोल्डेड और नॉट? आई एम स्कोल्डेड। मुझे तो डांट पड़ती है। अब कौन डांट सकता है? अब मैं यदि इसे और वही स्कूल वाले तरीके से कहूँ, कॉलेज वाले तरीके से कहूँ, बुक वाले तरीके से कहूँ, तो मैं कहूँगा आई एम स्कोल्डेड बाय माई वाइफ, आई एम स्कोल्डेड बाय माई फादर, I am scolded by my mom. I am scolded even by my children. लेकिन इस तरीके से हम how innocent you are. No, I'm not scolded. Okay, you are not scolded. So you are beaten. दीक्षा मैम, you are not scolded. आपको डांट नहीं पड़ती है? Right, I am scolded. मुझे तो डांट पड़ती है। Children are scolded. And sometimes they are beaten, they are slapped. So are you beaten or are you scolded? Are you slapped? What? क्या होता है आपके साथ? No sir. Right. पिटते नहीं हो आप लोग? बच्चे तो पिटते हैं, बड़े हो गए हो आप लोग। Children are beaten. बच्चे पिट जाते हैं, कभी कभी तो पिट ही जाते हैं भाई। को किसी को महीने में खुराक मिलती है, किसी को 2 महीने में मिलती है, किसी को 6 महीने में मिलती है। वो चिल्ड्रन आर बीटन। बच्चे तो पिटते ही हैं। राइट। सवाल है, आर यू स्कोल्डेड? क्या आपको भी डांटा जाता है? आप समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए। आर यू स्कोल्डेड? नो, आई एम नॉट स्कोल्डेड। यदि आपको कहना है कि भाई मेरे को नहीं डांटा जाता, आई एम नॉट स्कोल्डेड, आई एम नॉट बीटन बट स्कोल्डेड, आई एम स्कोल्डेड, आई एम ऑल्सो नॉट बीटन। मुझे भी कोई मार तो सकता नहीं, पीट तो सकता नहीं, बट आई एम। आर यू स्कोल्डेड? हाँ, आप चाहो तो पूछ भी सकते हो, सर आपको पीटा भी जाता है क्या? आर यू बीटन? नो, आई एम नॉट बीटन, आई एम नॉट बीटन। मुझे रेस्पेक्ट किया जाता है। आई एम रेस्पेक्टेड, आई एम ऑनर्ड, मेरा सम्मान किया जाता है। आई एम लव्ड, मुझे प्यार किया जाता है। चिल्ड्रन शुड नॉट बी बीटन बट स्कोल्डेड। यू आर राइट। तो अब मेरा एक आपसे सवाल है कि क्या डोसा बनता है आपके घर में? अब यदि डोसा बनता है तो आप कैसे कहेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में? आई एम लव्ड, यू आर रिस्पेक्टेड सर। ओके, आई एम लव्ड, आई एम रिस्पेक्टेड। करेक्ट। ओह, ये क्या भेज रही हैं अंजलि मैम?
I'm honored sometimes because you are a great personality. That's why. Okay, thank you. Thank you very much. बताइए मुझे मेरा सेंटेंस, मैंने आपसे पूछा कि डोसा बनता है, हमारे घर में डोसा बनता है, हमारे घर में डोसा बनता है, डोसा बनता है हमारे घर में, आपके घर में भी बनता होगा। जैसे अब आप इस सेंटेंस को आगे बढ़ सकते हैं, हमारे घर में तो डोसा हर हफ्ते बनता है, हर महीने बनता है। ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं सारे। डोसा हमारे यहाँ तो रोज बनता है। रोज रोज थोड़ी बनता होगा आपके यहाँ, खाना बनता है रोज तो आपके यहाँ। हाँ, यदि राइस आपके यहाँ रोज बनता है, राइस इज प्रिपेयर्ड एवरी डे, चपातीज आर प्रिपेयर्ड एवरी डे, सैंडविचेस आर प्रिपेयर्ड एवरी डे। हमारे घर में राइस इज नॉट प्रिपेयर्ड एवरी डे। डोसा इज प्रिपेयर्ड एवरी मंथ इन माई हाउस। अरे वाह दीक्षा, यू आर डूइंग वेरी वेल। फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर हियर and you are learning it very fast because you know I kept the level of this class very easy. मैंने इस क्लास का लेवल, लाइव क्लास का लेवल मैंने बहुत आसान रखा है। हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके मैं आपको सिखाता हूँ, उससे आप जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। एक दिन में एक स्ट्रक्चर सीखेंगे, कुछ वोकैबुलरी सीखेंगे, लेकिन उस स्ट्रक्चर को हम पक्का करेंगे ताकि वो हमारे दिमाग में सेट हो जाए और हमारी जबान से बाहर आने लगे। अब देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये काम होता है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई कोई सेंटेंस आप इंग्लिश में बनाओ, जैसे कपड़े प्रेस होते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे। इसे टाइप कीजिए, देखिए कैसे कहेंगे। कपड़े प्रेस होते हैं, प्रेस करने को कहते हैं आयरन। Thank you, Chandni. Thank you. Clothes are ironed. Correct. कॉपियां चेक होती हैं स्कूल में? कॉपियां चेक होती हैं स्कूल में? तो ये काम होता है। It is done. कॉपियां, नोटबुक चेक होती हैं भैया, नोटबुक चेक होती है, कॉपी से चेक्ड ना। ये स्पेलिंग गलत हो गई, ये वाली स्पेलिंग सही है। अंजलि मैम की स्पेलिंग सही है, दीक्षा मैम की स्पेलिंग चेक, वो तो वो वाला चेक हो गया ना, बैंक वाला चेक। CHEQUE नहीं होगा, CHECKED। नोटबुक्स आर चेक्ड, राइट। नाउ इट इज करेक्ट। फीस आर सबमिटेड, राइट। फीस भी जमा की जाती है। कोई भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स आर टॉट। यस सर, ऑटो करेक्शन, या इट हैपेंस समटाइम्स इन द मोबाइल फोन्स। You know, you type something else and it corrects it you know, it's an artificial intelligence। ये एक artificial intelligence है जिसे आजकल AI कह रहे हैं। आने वाली दुनिया AI से भरी हुई होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर एवरीथिंग। हर चीज में, हर जगह, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, और हर जगह लगा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा कई बार कि आप जिस तरीके की वीडियो देख लेते हो एक बार, उसी तरीके की वीडियोज आपको बहुत सारी दिखाई जाती हैं। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI। स्टूडेंट्स आर लाफ्ड इन लाइव क्लास नहीं, स्टूडेंट्स आर एंटरटेन्ड, या फिर कहेंगे स्टूडेंट्स आर मेड टू लाफ। स्टूडेंट्स आर मेड टू लाफ, या तो स्टूडेंट्स आर एंटरटेन्ड। स्टूडेंट्स आर लाफ्ड नहीं कह सकते, स्टूडेंट्स आर मेड टू लाफ। Sorry sir, I could not attend the class because somebody had come to my house. But your sentence is correct, Mohini. Your sentence is absolutely correct. Students are made to laugh. So no issue guys. Now it's more than 40 minutes. Today the class was longer. आज मैंने आपको ज़्यादा पढ़ा दिया, इसके लिए माफ़ी। I am committed to teach you for half an hour. मैं 30 मिनट्स के लिए ही
यहाँ लाइव क्लास में आता हूँ, बट यू मेड मी टीच. आपने मुझसे ज़्यादा पढ़वा लिया आज. नो इशू, enjoy the class, stay in touch. This live class timing is 6:30 every day, Monday to Friday. The students are made to love, right? So Abhishek is saying goodbye. Take care of yourself. Stay in touch.